Good afternoon, ma'am. Good afternoon, Nikita. What is economic system? Basically, three types of economic system. An economic system is allocated resources in the economy. In there are three type of economic system: socialist economy, mixed economy, or capitalist economy. In India, we adopt a mixed economy. After independence, our economy is socialist, but after the independence, our economy is mixed economy. Okay, and what is the another name of socialistic economy? Socialist economy. मैम नहीं पता. What are the fundamental rights? There are 6 fundamental rights. Okay. Freedom to equality, freedom to equality, freedom to religion, freedom to right to be equality, right to be rural, and right to the reason, right to freedom of religion, right to the education and culture, right to the मैम फिर से बताएं. Okay. Right to the ma'am, right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to the freedom of religion, right to the cultural and education, right to the ये constitutional remedies. पहला right to be. No, which one is justiciable? Is it fundamental right or the directive principle of state policy? Justifiable, ma'am. ये fundamental rights are justifiable or directive principle is not justifiable. Okay, Nikita, you can leave now. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Can you explain about capitalist economy? Your roll number is 14, right? Okay. Can I repeat this question? Capitalist economy, you have to say. Ma'am, capitalist economy is an economic system in which private individual or business own capital goods. That's it. Ma'am, the production of goods and services based on supply and demand in the general market. Okay, tell me something about Industrial Resolution 1991. Ma'am, Government of India announced the new industrial policy with the aim to correct the weakness of the industrial sector. Industrial structure. 1991. Yes, 1991. Okay. Yes, ma'am. The Government of India announced its new industrial policy with the aim to correct the weakness of industrial structure of the country. That's it. What are the features of joint stock company? Features of joint stock company? Features का हो जाएगा incorporate association, minimum number of members, artificial legal person. आवाज आ रहा है? ठीक है, बोलिए. Perpetual succession, limited liability. और मैम इसका ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर भी हो सकता है. Okay, you can leave now. Okay, thank you.
Hello. Divya. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. What do you mean by perpetual succession? Perpetual succession. हम याद नहीं है. What are the features of joint stock company? I'm joint stock company. वाइवा, मैम joint stock company. दिव्या, सामने जो भी नोटबुक रखे हुए हैं बंद कर दीजिए उसको. मैम नोटबुक नहीं है मैम. मैम ज्वाइंट स्टॉक कंपनी मैम आर्टिफिशियल पर्सन फर्स्ट फीचर और सेकेंड सेपरेट लीगल एंटिटी और फिर थर्ड हो गया फॉर्मेशन. फिर मैम हो गया कंट्रोल हो गया मैम. लिमिटेड लायबिलिटी हो गया. Difference between private company and public company? मैम इसमें एटलीस्ट 7 मेंबर होते हैं पब्लिक कंपनी में और प्राइवेट में एटलीस्ट मिनिमम 2 मेंबर होते हैं. पब्लिक में कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं होता है और प्राइवेट में मैक्सिमम 200 एग्जिट कर सकते हैं मैम. और मैम इसमें मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होते हैं पब्लिक कंपनी में और उसमें मिनिमम 2 डायरेक्टर्स होते हैं और शेयर कैन बी फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं इसमें. और इसमें रजिस्ट्रेशन ऑन द ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर होते हैं. और बस मैम. ठीक है, लीव कर जाइए. Abhyash, turn on your camera. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Okay, question to you is, what is socialism? List. In social economics, the step in exactly opposite to that of capitalist economy, such as the factor of production all the state owns. Done. Nora. What is CSR? Yeah. CSR. CSR. What is that? CSR पर नाम सुना हुआ है क्या? नहीं मैम, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी. हाँ, क्या होता है वो? Corporate social responsibility is business self regulation. Your roll number is 17. कौन से चैप्टर से पूछा जाए अभेश? यहाँ सही से आपका प्रिपेयर्ड है. जॉइंट स्टॉक कंपनी का फीचर बता पाएंगे? हाँ, फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक बता पाएंगे? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? कौन सी ईयर में? 1956. 56. 5656. ठीक है, आप लीव करिए अभेश. यस अभिषेक. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कौन सी ईयर में आया था? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट
What is unfair trade practice? Unfair trade practice. Difference between private company and public company. प्राइवेट कंपनी का एक ही ओनर होता है और पब्लिक कंपनी में बहुत सारे पब्लिक्स का लगा रहता है। परपेचुअल सक्सेशन किसको कहते हैं? ठीक है, लीव कर जाइए। Yes, Akash. Good afternoon. Tell me the impact of technology. Impact of technology. टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट से मैम इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ होता है मैम, नेशनल इनकम इंक्रीज होता है मैम, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ होता है, सोशल वेलफेयर में हेल्प करता है मैम टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट। बिजनेस को मैम न्यू टेक्नोलॉजी मिलता है जिससे प्रॉफिट इंक्रीज होता है मैम सबका। और मैम पीपल का वेल्थ बढ़ता है, मैक्सिमाइज होता है मैम न्यू टेक्नोलॉजी से। पब्लिक एंटरप्राइजेस का फीचर्स, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस? पब्लिक एंटरप्राइजेज में मैम, पब्लिक एंटरप्राइज एक गवर्नमेंट ओन्ड होती है, गवर्नमेंट कंट्रोल होती है मैम। और उसका पब्लिक एंटरप्राइजेस गवर्नमेंट मैम ये ज़्यादा सोशल वेलफेयर पे फोकस करती है, प्रॉफिट मोटिव पे ज़्यादा नहीं करती है मैम। और CSR के बारे में बताइए कुछ। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या होता है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में मैम इसमें कंपनी को अपना प्रॉफिट से कुछ परसेंटेज गवर्नमेंट को देना रहता है। फिक्स्ड प्रॉफिट मार्जिन दिया रहता है, जैसे 5 करोड़ के ऊपर 2% टैक्स देना पड़ता है मैम। Okay, Akash, you can leave now. ओके मैम, थैंक यू। गुड आफ्टरनून। आपको टाइप्स ऑफ कंट्रोल बताना है। स्टेट इंटरवेंशन में गवर्नमेंट कौन कौन से टाइप का कंट्रोल करती है? रूल 15 बताइए। मतलब मैम जो पॉइंट्स लिखवाए थे वही ना मैम? हाँ, ओके। टाइप ऑफ पार्टनर्स बताइए। टाइप्स ऑफ पार्टनर मैम, स्टेट इंटरवेंशन में मैम। हाँ, स्टेट इंटरवेंशन में टाइप ऑफ पार्टनर्स। हाँ, क्या अलग चैप्टर है वो? पार्टनरशिप। यस मैम, 5 टाइप ऑफ 5 ओके। सोल प्रोप्राइटरशिप, नर्वस क्यों हो रहे हैं? पहले सांस तो लीजिए, पानी पी लीजिए, फिर बताइए। पार्टनरशिप चैप्टर है, उसमें टाइप्स ऑफ पार्टनर। They have given you a presentation on this topic. मैम। यस मैम, 4 टाइप्स है मैम। पार्टिकुलर पार्टनरशिप,
I am not talking about partnership. I am asking about type of partners. Both are different. Type of partnership is different. Type of partner is different. Ma'am, please ask me the next question. किसको कहते हैं? Active partner किसको कहते हैं? Yes, ma'am. Active partner किसको कहते हैं? मैम आप पार्टनरशिप बोले नहीं तो मैम, तो हम पार्टनरशिप उतना अच्छे से नहीं पढ़े थे, मतलब पढ़े थे लेकिन मैम भूल गया थोड़ा सा, तो ज्यादा इधर ही। टाइप ऑफ इंटरवेंशन बता दीजिए। टाइप्स ऑफ इंटरवेंशन मैम 2 टाइप्स है मैम। कौन कौन सा? नेचर मैम देखा जाए तो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। बस इतना ही? और मैम और है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल का आर्टिकल बताइए। आर्टिकल डायरेक्टिव प्रिंसिपल मैम 36 to 51 है। ठीक है, कौन से पार्ट में दिया हुआ है वो? मैम मतलब एक बार मैम इंटरवेंशन का टाइप्स ऑफ क्या पूछे थे, मतलब हम कंफ्यूज हो रहे हैं, मतलब बताइए, इसका बताइए। यस मैम। डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बारे में बताइए। यस मैम। कौन से पार्ट डायरेक्टिव यस मैम पार्ट 4 में है। के कौन से पार्ट? ठीक है, और किससे लिया गया है ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल? मैम पहले मैम सबसे स्पेन का अपना है मैम, और स्पेन आयरलैंड स्पेन से लिया था, और इंडिया आयरलैंड को कॉपी किया है। ठीक है, लीव कर जाइए। ठीक है, थैंक यू मैम। Yes, Vivek, what is mixed economy? Good afternoon, ma'am. Good afternoon. What is a mixed economy? Yes, ma'am. Mixed economy क्या होता है? What is mixed economy? इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 एक्सप्लेन कर पाएंगे? No, ma'am. नहीं बताते। हाँ? What are fundamental rights? कौन से पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है आपका फंडामेंटल राइट्स? वेरी गुड। टेस्ट कैसा गया आपका अभी? टेस्ट ठीक ही गया था। ठीक ही गया हो तो बता ही रहा है कैसा गया होगा। बढ़िया है, क्लास मत करिए इसी तरीके से। चलिए लीव करिए, थैंक यू। Yes, Adarsh. Good day. Good afternoon. Question to you is, what is mixed economy? Mixed economy क्या? What is that? Mixed economy is the economy in which they are both central as well as private enterprises, in which it is the combination of capitalist and socialist economy. It is also, it led to the, sorry. It led the demerits of the capitalist and socialist economy. Social economy was solved by this mixed economy. Done. Yes, ma'am. Done. Industrial policy 1991.
In industrial policy 1991, there is also its introduction of LPG was there. Introduction of LPG was there. That means liberalization, privatization, and globalization. In liberalization, there was a removal of licensing system, and in globalization there was privatization. All the public sector, some public sector companies is going to the private, given to the private sector. Globalization, which it means there was a transport of goods and services to the whole world. Okay, Adarsh, leave now. Roll 20. Yes, ma'am. Okay, leave. Good Yes, afternoon. Good afternoon. What are the rights of consumers? Right to be heard, right to be assured, right to be protected, right to be seek redressal, right to choose, right to inform. And what are the 3-tier system in Consumer Protection Act? Ma'am, repeat. What are the 3-tier system in Consumer Protection Act? District forum, state commission, state forum, and national commission. Okay, and what are the features of joint stock company? Joint. Ma'am, explain भी करें या बस features? नहीं, बस features बताइए. Voluntary association, a perpetual succession, limited liability, transferability of shares, common seals, voluntary association, artificial legal person, corporate finance, statutory regulation and control, and statutory regulation and control, and ma'am, एक second. Separation of ownership and management. Okay, leave now. Right now. Thank you, ma'am. Yes, Mahima. Tell me about industrial policy 1991. What are their features? What are the features of industrial policy 1991? मैम सबसे पहले इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाया गया था 1948 में जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ था. डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडस्ट्रियल मिनिस्टर उस टाइम थे. एंड उसके बाद 1956 पॉलिसी आई जिसको इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा गया क्योंकि हमारा वहाँ पे फर्स्ट ईयर प्लान जो स्टैब्लिश किया गया था 1956 से लेकर सिर्फ 91 पे स्टिक रहना. आप पूरा बताएंगे क्या? सिर्फ 91 बताइए. 91 बताइए सफिशिएंट है. ओके 1991 में मैम सबसे पहले पीवी नरसिम्हा राव जी के गवर्नमेंट में लाया गया 1991 पॉलिसी को जिसको हम न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं. और इसको लाने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि सबसे पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसके फादर थे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 के. इसका मेन रीजन ये था कि जब MRTP एक्ट 1969 में आया था तो इसमें जो भी जितने सारे कंज्यूमर जितने सारे प्रोड्यूसर थे वो प्रोड्यूसर्स MRTP मोनोपोली रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड पॉलिसी के अंदर कोई भी जिसका भी एसेट 100 करोड़ से अबव हो जाता था तो उन लोगों को सारे प्राइवेट प्लेयर्स थे उनको गवर्नमेंट से डिसीजंस लेने पड़ते थे इन्वेस्टमेंट के लिए. इसलिए 1991 को लाया गया ताकि प्राइवेट प्लेयर्स का भी मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल हो इस इंडस्ट्रीज में जिसमें थे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. लिबरलाइजेशन में रिमूवल ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग जितने भी लाइसेंस थे प्राइवेट सेक्टर पे लाइसेंस लगते थे उसको रिमूव किया जाएगा क्योंकि गवर्नमेंट फॉर स्टार्टिंग न्यू वेंचर्स के लिए स्टार्टिंग के लिए इन दिस पॉलिसीज प्राइवेट सेक्टर हैज बीन फायर फ्रॉम लाइसेंस एंड अदर रिस्ट्रिक्शंस हैव बीन रिमूव्ड. एंड देन इसमें आया था प्राइवेटाइजेशन में जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनीज थी उसको प्राइवेट प्लेयर्स को हाथों में बेचना, उनके शेयर्स को हाथों में बेचना. मतलब जब 1991 में मारुति उद्योग कंपनी को प्राइवेट पब्लिक सेक्टर थी उसको गवर्नमेंट के हाथों में प्राइवेट प्लेयर के हाथों में बेच दिया गया जिसका शेयर्स 40 से 55% बढ़ गया.
जिसमें प्राइवेट प्लेयर्स अब उसके प्राइवेट ऑनरशिप के अंडर में आता है। फिर उसके बाद प्राइवेटाइजेशन में ये भी आया कि जिस इन्वेस्टमेंट किया गया जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी थी वो सारे लॉसेस में रनिंग कर रही थी, इसीलिए गवर्नमेंट आई कुछ इंडस्ट्रीज को प्राइवेट सेक्टर के हाथों में दी ताकि वो सफिशिएंट वर्क कर सके, ताकि उनका मैनेजमेंट बेटर हो सके। फिर उसके अंदर मिनिमाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर, जितने भी पब्लिक सेक्टर थे उनको मिनिमाइज किया गया प्राइवेटाइजेशन के अंदर, ताकि गवर्नमेंट ताकि पीएसयू जितने भी थे उन इंडस्ट्रीज को हो सके। 1 घंटा पूरा चला जाएगा आपका ये। ग्लोबलाइजेशन सुन लीजिए मैम। ग्लोबलाइजेशन मीन्स लिटरली स्पीकिंग मीन्स टू मेक ग्लोबल वर्ल्ड वाइड, मीन्स otherwise taking conditions of whole world. Broadly to globalization means the world interaction of domestic economy with the world of rest of the world regarding in foreign investment. इसके अंदर मैम लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी आया, रिडक्शन इन टैरिफ्स हुआ एंड पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपीस या करेंसी हुआ, जिसके अंदर फेमा भी आया। फॉरेन में कौन-कौन? What are the different political institutions? Political institutions? Yes ma'am, repeat question. हाँ, political institution में कौन आता है? पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। मैम इसको एक्सप्लेन भी करना है। वन लाइनर सफिशिएंट होगा? वन लाइनर याद रखिए, वन लाइनर। हाँ ओके। लेजिस्लेशंस who makes the law for constitutions of India, he has power to amendment the law. An executive who enforce the law in India of the constitutions. An example IAS, IPS, bureaucracy of the Indian constitutions. And judiciary who have find the cases and making the law for appropriate case, जिसके अंदर अपील कोर्ट हो गया। मेघा कैमरा ऑन करिए। फंडामेंटल राइट्स कौन से हैं? What are the fundamental rights? Ma'am, fundamental rights: right to equality, right to freedom, or right to freedom of religion, or right to cultural and educational freedom, or right against exploitation, or right to constitutional remedy. What is capitalist economy? Ma'am, एक बार फिर से रिपीट करिएगा। What is capitalist economy? मैम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो मैम प्राइवेट पर्सन के द्वारा वो इंडस्ट्री खोला जाता है गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए प्राइवेट कंपनी के द्वारा। And what is artificial legal person? मैम आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, ठीक है, लीव करिए। थैंक यू मैम। Good evening, ma'am. Good evening, Manisha. What is corporate finance in joint stock company? मैम ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में होता है मैम। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी ज्वाइंटली पार्टनरशिप में जो स्टार्ट होते हैं मैम, ये सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। क्या चीज? कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या होता है? ज्वाइंट स्टॉक का एक फीचर है ना कॉर्पोरेट फाइनेंस। व्हाट इज दैट? सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल एक्सप्लेन करेंगे। इसमें ओनरशिप रहता है, इसमें शेयर होल्डर का रहता है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का वो रहता है। ओनरशिप क्या रहता है? ओनरशिप किसका होता है? मैम आप क्या बोले फिर से एक्सप्लेन करें। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल एक फीचर है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का, उसको एक्सप्लेन करना है। मैम कंट्रोल रहता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हाथ में और वो रहता है शेयर होल्डर। ठीक है, और प्राइवेट और पब्लिक कंपनी के बीच में डिफरेंस क्या है?
मैम प्राइवेट कंपनी को शेयर कर सकती है, पब्लिक कंपनी शेयर नहीं कर सकती है। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम पेड अप 5 करोड़ और पब्लिक में मिनिमम पेड अप 1 करोड़। ठीक है, लीव करिए। Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून। सो यस, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 एक्सप्लेन करिए। 1948 में मैम इंडस्ट्रीज को डिवाइड किया गया था कुछ सेक्शंस में। सबसे पहले सेक्शन में तो आ जाता है एटॉमिक एनर्जी, रेलवेज। सेक्शन 2 में आ जाता है हम लोग का कोल एंड नेचुरल रिसोर्सेज। CSR एक्सप्लेन करिए। हम CSR बिजनेस में इसलिए is used in business to balance the social and environmental balance. पहले इसका फुल फॉर्म बताइए। Corporate social responsibility. ठीक है। डेफिनेशन। राइट्स ऑफ कंज्यूमर बताइए। Right to be informed, right to be protected, right to seek redressal, right to be informed, right to be assured. Yes, sir. लीव करिए। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून संजलि। आप बताइए MRTP का फुल फॉर्म। मैम MRTP का फुल फॉर्म मोनोपोलाइजेशन रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस। ऑब्जेक्टिव्स। मैम MRTP का ऑब्जेक्टिव्स अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को रेस्ट्रिक्ट करना, स्टॉप इक्वालिटी लाना इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। क्या ऑब्जेक्टिव क्या क्या? इक्वालिटी इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। What is CSR? Ma'am, that is corporate social responsibility, which motive is to provide some which have to contribute some of the assets to the societies for the welfare of the societies. फंडामेंटल राइट्स कौन से पार्ट में दिया हुआ है? Ma'am, fundamental rights are considered in part 3 of the Constitution. Under article क्वेश्चन से लिया गया है, borrowed from US Constitution, USA. ठीक है, लीव करिए। Okay, ma'am, thank you. गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। खुशी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का ब्रीफ दीजिए 1 मिनट के अंदर, जितना आपको पता है। ओके मैम, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, उसे हम कोपड़ा कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो UTP अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है उससे लिया गया है। और कंज्यूमर प्रोटेक्ट एक्ट के अंदर 6 हमारा राइट्स है, कंज्यूमर राइट्स। और इसमें 3 कोड होता है, QC 3 सीयर कोड, जिसमें कि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का होता है, एक स्टेट लेवल का होता है और एक नेशनल लेवल पे होता है।
और यहाँ पर कंज्यूमर का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाता है और कंज्यूमर काउंसिल्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन होता है। CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस CSR में हम लोग ये देखते हैं कि जो भी कंपनी का मतलब कि टर्नओवर 1000 करोड़ से ऊपर होता है तो वो CSR में अपना पैसा देगी, और जिसका कि नेट वर्थ 500 करोड़ से ऊपर होता है वो देगी, और जिसका कि नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज्यादा होगा वो CSR में कंट्रीब्यूट करेगी। ठीक है, लिख कर जाइए रोल नंबर 8। ओके, थैंक यू मैम। Yes, Rishu, turn on your camera. Yes, ma'am. हाँ, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 के बारे में आप कुछ बताइए। हाँ, नहीं, जॉइंट स्टॉक कंपनी का फीचर्स बताइए। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है? मैम जिसमें कैपिटल सोशलिस्ट मिक्स्ड होता है। फीचर्स क्या होगा दोनों का? किसका? मिक्स्ड का फीचर्स क्या क्या होगा? हम 3 टाइप्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी होते हैं। फीचर्स मैम CSR के बारे में कुछ बता पाएंगे? ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, ठीक है, लिख करिए। यस सचिन। गुड आफ्टरनून मैम। राइट टू इक्वालिटी एक्सप्लेन करिए। राइट टू इक्वालिटी। 1 मिनट मैम होल्ड कीजिए, पहले इसको बंद होने दीजिए। वेटिंग रूम में जाइए, रुकिए। कैमरा ऑन करिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्या होता है? क्या मैम? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्या होता है? कितने टाइप के फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे पास? मैम 3। कौन से पार्ट ऑफ प्रिंसिपल कौन से पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है? DSR। CSR का फुल फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी करिए। यस मनीष, कैमरा ऑन करिए।
यस मैम। आप राइट टू इक्वालिटी को एक्सप्लेन करिए। व्हाट मैम? राइट टू इक्वालिटी जो फंडामेंटल राइट्स में दिया हुआ है उसको एक्सप्लेन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैम, आई डोंट नो। डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल। मैम फंडामेंटल राइट यस मैम, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में टाइप ऑफ पार्टनरशिप। particular partner at will. There are 4 type of partner. One particular partnership. सही तो बोल रहे हैं, पर्टिकुलर पार्टनरशिप और partner at will, partnership at will, partner limited partner. ठीक है, लीव करिए। शाहिद, योर रोल नंबर इज 2। आप बताइए राइट टू इक्वालिटी एक्सप्लेन करिए। राइट टू इक्वालिटी आपको एक्सप्लेन करना है। फंडामेंटल राइट में राइट टू इक्वालिटी, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? आवाज नहीं आ पा है। आवाज नहीं आ रही है मेरी? यस मैम, स्लो आ रही है, बोलिए। राइट टू इक्वालिटी पूछ रही हूँ। होगा? नो मैम। CSR, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 91, कौन से चैप्टर से पूछूं? से बताइए। हाँ? Consumers का right? What are the rights of consumers? Right of consumers? ठीक है, लीव करिए शायद। आपका रोल। हाँ दीपेंद्र, राइट टू इक्वालिटी बताइए। यस मैम। राइट टू इक्वालिटी दांत शुरू। कंज्यूमर का मैम। राइट टू इक्वालिटी कंज्यूमर में पढ़े हैं, किस में पढ़े हैं? मैम राइट टू इक्वालिटी तो यही है ना। फंडामेंटल राइट्स कौन से पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है? मैम कैसा क्वेश्चन? कौन से चैप्टर से पूछूं, बताइए। जिसका हम प्रेजेंटेशन दिए। किसका प्रेजेंटेशन दिया था? ये इकोनॉमिक सिस्टम का। मिक्स्ड इकोनॉमी बताइए। मैम मिक्स्ड इकोनॉमी में इसमें कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों मिलके काम करता है। वो डिटेल में बताएं मैम। सारा फीचर्स बताइए। शाहिद, आप लीव कर सकते हैं। और मैम मिक्स्ड इकोनॉमी में यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर जो अपना ये भी फ्रीली काम करता है, यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं रहता है मिक्स्ड पेपर में। और यहाँ पे प्राइवेट अपने लिए वो प्रॉफिट का ही बात करते हैं और यहाँ सोशल वेलफेयर का ही बात होता है मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों। मिक्स्ड में जैसे फॉर एग्जांपल नेपाल एग्जांपल में
और CSR का फुल फॉर्म बता पाएंगे? यस मैम, कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी राइट्स। जब CSR है तो कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी राइट कहाँ से आ जाएगा? चलिए लीव करिए। हाँ सचिन, सेटल हो गया? यस मैम। लीव करिए, दीपेंद्र हो गया। हाँ, आपसे क्वेश्चन है, कौन कौन सा फंडामेंटल राइट्स है हमारे पास? फंडामेंटल राइट्स, राइट टू इक्वालिटी, भूल गए, एक ही याद है। और एक्सप्लेन करिए राइट टू इक्वालिटी को। राइट टू इक्वालिटी मतलब आर्टिकल 14 में पहले था कि देश के हर एक व्यक्ति को प्रॉपर इक्वालिटी मिलता था, पर आर्टिकल 15 के बाद रिलीजन, कास्ट, उसके बाद सेक्स वगैरह इस सब के आधार पर उसको इक्वालिटी मिलता है। CSR बता पाएंगे? इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 बता पाएंगे? CSR बता रहे थे मैम। हाँ, CSR बता रहे थे पर माइक बंद था। नोटबुक खोलने के बाद। तो मैम बस हल्का फुल्का मालूम, जैसे CSR कंपनीज, CSR सोशल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर जैसे मैं इन्वायरमेंट वगैरह को देखते हुए काम करता है। बस 91 बताइए। इंडस्ट्रियल पॉलिसी 56 बताइए, 1956। नो मैम, नहीं ध्यान में है।